عذاب سے بچانے. کیا ہے وہ؟ تم اللہ پہ ایمان لے اور اس کے آگے عمل دے. تو یہ عمل کی فکر ہو. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا علم جو حاصل کیا میرے بندے اس پہ عمل تو نے کتنا کیا. یہ 5 سوالات اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے لیے 5 سوالات جو ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق. اللہ تعالیٰ ہمیں نفع بخش علم عطا فرمائے. تو میں 5 سوالوں کو پھر سے شارٹ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. نمبر 1 عمر جو دیا کہاں صرف کیا. نمبر 2 جوانی جو دی وہ کدھر صرف کیا. نمبر 3 مال کہاں سے کمایا. نمبر 4 مال کہاں خرچ کیا. اور نمبر 5 جو علم حاصل کیا اس کے مطابق کتنا عمل ہوا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم حاصل نہیں کرنا. علم حاصل کرتے رہنا ہے اور اللہ سے مدد کی طلب کرتے رہنا ہے اور اس علم پہ عمل کرتے رہنا. اب ہر آدمی کو پتا ہے 5 وقتہ نماز پڑھنا فرض ہے. ٹھیک ہے. ٹکنے کے اوپر کپڑا پہننا فرض ہے. داڑھی رکھنا سنت ہے. سنت نہیں ہے ہمارے یہاں داڑھی رکھنا واجب ہے. ٹھیک ہے. وہ فرضیت کی سنت ہے. سب کو علم ہے کرنا چاہیے. دیکھیے آدمی کی کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے سے یہی پوچھ لے گا قیامت دن یہی کہ تو نے ایسا کیوں نہیں کیا. کیوں نہیں. اگر اللہ دیکھیں ایک تو اللہ تعالیٰ گرائے گا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اگر گراتے چلیں گے اللہ تعالیٰ تو سمجھیں گے آپ کامیاب ہو گئے. لیکن اگر کسی بھی ایک پوائنٹ پہ اگر اللہ یہ آپ سے پوچھ لے گا قیامت کے دن یہ کیوں نہیں کیا کیوں کوئی جواب نہیں دے سکتے. کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا اللہ کی یہ تو نے کیوں نہیں کیا. کس بات تجھے روکا کس بات نے تجھے روکا. اس لیے اپنا محاسبہ آلویز میں کہتا ہوں اپنا محاسبہ کریں. علم حاصل کریے علم کو بڑھائیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قیامت کے روز جتنی ہولناک کیا یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کے سائے میں اللہ ہمارے لیے جگہ ہمیں متعین فرما دے. اللہ ہمارے لیے ان جوابوں کو آسان کر دے. اللہ تعالیٰ کی ہی صرف مدد ہو سکتی ہے قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اللہ تعالیٰ ہم اس مرحلے سے پار کر جائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں فرمائے. سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سوال مطابق روز محشر کہاں واقع ہوگا؟ روز محشر دیکھیے حدیث میں اس کا لفظ کیا ہے ایک تو میدان عرفہ جس کو آپ کہتے ہیں. ہاں وہ اس دن میدے کی روٹی کی طرح بنا دی جائے گی. اس طرح میدے کی روٹی کا کلر ہوتا ہے وہ اس طرح اس دن بنا دیا جائے گا. یہ حدیث ہم کو ملتا ہے. اب وہ کیسا ہوگا کیا ہوگا اللہ والا سوچیے. اتنے لوگ ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کر کے جو آخری بچہ جو پیدا ہوگا اس امت وہ سب کے سب ہوں گے غیر مسلم وغیرہ سب ہوں گے. تو میدے کی روٹی کی شکل میں اس کو بنا دیا جائے گا. سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ وہاں پر اکٹھا کرے گا. وہ پہلا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. پہلا دن فلیٹ ہو جائے گی. اب کیا ہوگا یہ اللہ والا اللہ. تو پہلا دن وہاں کا 50,000 سال کے برابر. دنیا بھی 50,000 سال. آپ نے ایک حدیث ابھی عمل کے بنیاد پہ کہا کہ اللہ اپنے عمل کے بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں آئے وہ اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں آئے. اور دوسری جگہ ایک سورہ عصر ہے جس میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عمل کو وہاں پوائنٹ کیا گیا. وہ جنت میں جانے کا کرائٹیریا ہے. یعنی تو عمل کرتے رہو. ان الذین آمنوا سوائے اس کے جنہوں نے ایمان لایا وعملوا الصالحات جس نے نیک عمل کیا. ٹھیک ہے. اور صبر کی تلقین کرتا رہا اپنی دعوت کا کام کرتا رہا. ٹھیک ہے. تو یہ عمل کے یہ کرائٹیریا ہے جنت میں جانے کے لیے. نے کہا یہ لوگ کھاتے میں نہیں ہیں اس لیے آپ کو عمل کرتے رہنا ہے. میں نے کیا کہا آپ کو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ ہم عمل نہیں کریں گے. آپ کو جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے جو فرائض ہیں وہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے اور آپ جتنا عمل کر سکتے ہیں آپ عمل کریے. لیکن آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں اپنے عمل کے بنیاد پہ جاؤں گا. یہ نہیں سوچنا. عمل کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے آپ کو اللہ سے امید آئے رہنا اللہ سے خوف کھاتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مغفرت کرتا رہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم عطا فرمائے. یہ ہمارا عمل تو آپ کرتے ہی رہنا ہے لیکن عمل کے ساتھ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں اپنے عمل کے بلبوتے پہ چل جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا عمل تو کرنا ہی کرنا ہے.
ये तो जन्नत जाने का क्राइटेरिया है। अब आज लोग कुछ कह देते हैं क्या, एक शख्स बोला मेरे पास नमाज क्यों नहीं पढ़ते, बोले नहीं मेरे इमाम साहब है वो बोलते हैं कि तुम्हारा खबर में आगे जवाब देते हैं। बहुत अच्छा बात है, तो ये हुआ शॉर्टकट। ठीक है, हमारे वो कौन है हजरत बोरा वाले जो मर गया अभी, इनका इंतकाल हो गया, हाँ बरौनुद्दीन साहब, वो क्या बांटते थे, वैसे ऐसा बांटते थे लिख करके, ये वाला आपको इतना चाहिए जन्नत में, ये वाला महल चाहिए, ये वाला फ्लैट चाहिए तो इतना रुपया, ये वाला चाहिए तो इतना रुपया। ये सब के सब बातें लोग गुमराह फिरके हैं जो लोगों से बस रुपये बना रहे हैं। इसलिए हर इंसान को अपने अमल की जरूरत है, बिना अमल के कोई इंसान जन्नत में नहीं जाने वाला है, और अल्लाह की रहमत होनी चाहिए। इसलिए अमल आपको करना है, अमल क्राइटेरिया लाने वाला है, तुम अमल करो। लोगों का परसेप्शन बन जाता है, सुनते वो सोचते हैं कि नहीं रहमत से ही चले जाए। एक हदीस है, अल्लाह ने फरमाया कि जिसने सच्चे दिल से कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में जाएगा। ठीक है, सहाबी जो हदीस सुने जा रहे थे लोगों को बयान करने, हज़रत उमर से मिले, कहा कहाँ जा रहे हो, कहा ये हदीस सुनाने जा रहा हूँ, मारा हज़रत उमर, कहा ये नहीं सुना। दोनों आए नबी से सुना, नबी से पूछा क्यों मारा, अल्लाह के रसूल की आपने कहा ये हदीस क्या है, कहा अल्लाह के रसूल मुझे डर लगता है किस बात से, कि अगर कहीं आप लोगों को ये बता देंगे कि जिसने सच्चे दिल से कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए वो जन्नत मिलेगा, तो लोग अमल नहीं करेंगे, लोग अमल नहीं करेंगे, तो सोचेंगे यही मुर्जिया का ही होना जो गुमराह फिरका में भाई, जिसने कहते हैं सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में चला गया। ये क्या होता, मनहज कर दिया, मनहज से आदमी ट्रैक से हट जाता है, तरीके से हट जाता है, तो ये होता है। इसलिए ऑलवेज मनहज को पकड़े रहिए। मनहज क्या, सल्फ़े सालिहीन का, जिस तरीके से सहाबा ने समझा। आप बहुत बड़ा आलिम हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मनहज से हटे बर्बाद हो गया। वही हुआ मुर्जिया वगैरह जितने भी लोग हैं ना, वो सब इसी वजह से सब। अच्छा, जितने गुमराह फिरके हैं इस्लाम में, खास बात ये कि सबकी दलील कुरान हदीस है, सबकी दलील कुरान हदीस है। शिया आयतुल कुर्सी का ये लेते हैं, क्या है, अलीउल अजीम, ऐसी का शिया बोल देखो यहाँ नाम है, हज़रत अली का नाम आया, अली ही अजीम है। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, अली मुझसे अली ऐसा है जिस तरीके से मूसा हारून के लिए था, हारून मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। तो बोलते देखो अल्लाह ने फरमाया अली उसी तरीके से जिस तरीके से मेरी निस्बत अली से वैसी जिस तरीके से मूसा की निस्बत हारून से थी। तो वो कहते देखो मूसा और हारून कौन थे, दोनों नबी थे, एक रसूल थे एक नबी थे, दोनों भाई थे। तो नबी के बाद कौन बनता हुक्मरान, अली। बाद में कहा नहीं भाई उन्हीं के पास आने का था वो। तो ये हुआ दलील, लेकिन दलील को गलत तरीके से समझना हुआ, सलफ़े सालिहीन के मानज के तरीके से हट के समझो। जितने आप देख लीजिए, जितने गुमराह फिरके, किसी ने तकदीर का ये कर दिया, अल्लाह ने कहा ना भाई जिसके तकदीर में जो होता वही होगा। तो कहा भाई जब मेरे तकदीर में चोरी करना हुआ तो मैं चोरी कर रहा हूँ। तो जितने गुमराह फिरके बने सबके सब कुरान हदीस का दलील आज भी देख लीजिए, आज भी वही है ना, आज भी वही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए कि नहीं, दलील है, दलील है। कोई हफ्शा का दलील दे रहा है तो कहाँ का दलील दे रहा है, तो कहाँ का दलील दे रहा है। तो सारी की सारी गुमराह फिर कोई दलील क्या, कुरान और हदीस ही होती है। लेकिन फर्क क्या हो जाता है, समझना, समझ। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। ईमान लाना है तो वैसे ना जिस तरीके से नबी के सहाबा ईमान लाते, मतलब जैसे उन्होंने इस्लाम को समझा था आपको वैसे ही इस्लाम को समझना है। आपके दिमाग में हटे चाहे नहीं हटे, वरना क्या होता है इंसान मनहज से हटता है तो क्या होता है, भटक जाता है, गुमराह हो जाता है। जितने गुमराह फिरके बने सब की दलील कुरान और हदीस है। एक और सवाल है, आपने बैंक से बोला कि बैंक से रिलेटेड अभी जितने भी एमएनसी फॉर्म है, बड़े फॉर्म है, उनकी जो सैलरी है बंदे की क्रेडिट वो बैंक से ही होती है। इवन मेरी सैलरी बैंक से ही क्रेडिट होती है। तो क्या ये, देखिए मैं आपको एक हदीस बता रहा हूँ। एक तो अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू हक़्क़ तुक़ातिह, ईमान वालों अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। सूरह तग़ाबुन क्या है, जितना तुम इस्ता, यानी अल्लाह से डरो जितना तुम डर सकते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के आप बैठे हुए थे मजलिस में, खाना सर्व किया गया, गोश्त खाने लगे। तो एक साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल ये तो सदका का है, नबी पे सदका हराम होता है, नबी पे सदका हराम होता है। तो साहबी कह रहा है ये तो सदका का है। तो अल्लाह के रसूल क्या जवाब दे रहे हैं, ये सदका बरीरा के लिए था, मेरे लिए क्या है, तोहफा है। सदका हजरत बरीरा को मिला रज़ियल्लाहु ताला, तो ये सदका किसी ने हजरत बरीरा रज़ियल्लाहु ताला को दिया, मेरे लिए क्या हो गई है, तोहफा हो गया। समझ में आई बात।
तो उलमा कह रहे हैं कि डायरेक्ट आप सूदी काम में मुलविस नहीं हो सकते। जब एक कंपनी होती है एमएनसी कंपनी, तो उसके और भी शेयर्स होते हैं और भी हालात तरीके से उनका इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो आप सैलरी उस चीज से उठा रहे हैं, सबसे नंबर एक बात। दूसरी बात ये, आप उसके जो सूदी निजाम है उसमें आप मुलविस नहीं है। बैंक में क्या होता है, पूरा का पूरा निजाम सूदी निजाम पे बेस होता है। आप खाते पे भी लिखते हैं तो क्या है, उसी का है, आप उसी में लिख रहे हैं। अब एक चीज होती है मजबूरी, जैसे बाद लोग कहते हैं ड्राफ्ट भी तो आप बनाते हैं, अकाउंट में भी तो आप बैंकिंग में खुलवाते हैं। तो आप पढ़िए फतावा, उसमें उलमा कह रहे हैं कि दरअसल ये हमारे पास मजबूरी है, सुअर का गोश्त मजबूरी खाना हलाल है उस वक्त के लिए, जितना आप बच सके, ठीक है। तो चूंकि कोई इंडिया में कोई इस्लामिक बैंकिंग नहीं है, हम मिसाल के तौर पर हमको 10 लाख रुपए की ट्रांसफर करना, तो आप कैसे ट्रांसफर करेंगे, हाथ में तो नहीं ले सकते ना, रिस्क है ना। तो हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी उजरत हम दे रहे हैं, हम उसमें मुलविस नहीं है डायरेक्ट। इस हदीस को याद रखिएगा। अल्लाह के नबी ने खाना खाया, क्या कहा, ये सदका था बरीरा के लिए, मेरे लिए क्या है, ये तोहफा है। तो मेरे लिए यहाँ पर एक मजबूरी है कि इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम इंडिया में नहीं है। तो बैंक के काम चूंकि इंडिया में जो कि पूरा सूदी निजाम पे है, उसमें आप किसी तरीके से उसके डायरेक्ट ये बन जाते हैं, एम्प्लॉय बन जाता है, यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड भी अगर बनते हैं तो वो हराम है। जमहूर उलमा के नजदीक ये हराम है, हराम है, मुतलकन हराम है, जमहूर उलमा के नजदीक। नहीं, आपने कहा कि एक इंजीनियर अगर, तो वो इंजीनियर तो अपने ही काम से जा रहा है ना, वो काम तो अपने को नहीं करना है। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर है, अल्लामा इब्न समी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर आप वहां जाके उस बैंक के कंप्यूटर को ठीक कर रहे हैं तो आपको नहीं जाना है। यू हैव टू क्यों, अगर आपको जॉब को छोड़ना पड़े, आपको छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए चाहिए तकवा, इसके लिए चाहिए आपको अल्लाह पर इतना भरोसा, इतना यकीन। अगर वो कहते हैं, अगर वैसा है तो, लेकिन चूंकि आप एमएनसी में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी काम करते हैं, उसके और तरह तरीके जराए होते हैं, शेयर होते हैं, आप उसको आप डायरेक्ट मुलविस नहीं हो रहे, याद रखिएगा, डायरेक्ट कभी मुलविस नहीं हो रहा है। इंडिया की मैं बता रहा हूँ, और जहां कहीं भी इस्लामिक बैंक है और वहां काम ना करके या वहां अकाउंट ना खुला करके आप नॉन इस्लामिक बैंक काम कर रहे हैं, जहां पर इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम का सहूलत मौजूद है, तब तो आप पक्के गुनाहगार होंगे। जी, लेकिन यहाँ पर सहूलियत नहीं है, इसके मुताबिक हम आपको ये करना पड़ता है। इसलिए ये सब आदमी जो दलील देता है, जो आदमी बैंक में काम करते हैं, ये सब गैर इस्लामिक बैंक, वर्ल्ड बैंक जैसे वर्ल्ड बैंक, जैसे अरबों रुपये वर्ल्ड बैंक ममालिक का जो भरा हुआ है, सूद न दे, तो सूद का पैसा अगर नहीं लेकर जी तो आपके खिलाफी हथियार फेंकते हैं जी, तो उस हालत में पैसे को देना कैसा? देखिए, जो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में बन रहा है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक में हो या इंडिया के बैंक में हो, कहीं भी बैंक में, जमहूर उलमा ये कहते हैं कि वो इंटरेस्ट का पैसा आप बैंक में छोड़िए मत, उसको आप निकालिए, ठीक है। निकालने के बाद अपने पर्सनल काम में उसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको आप किसी जरूरतमंद, जैसे किसी का बहुत कर्जा है या कहीं पर रोड वगैरह पे टॉयलेट्स वगैरह बन रहा है, उसमें आप दे दीजिए बगैर सवाब की नीयत से। उसमें आपका सवाब, आप 1 रुपया जो अपने हलाल पैसे दीजिएगा, उसमें आपको अल्लाह सवाब देगा। क्योंकि उलमा कहते हैं कि अगर आप छोड़ देंगे तो छोड़ देना भी तो देना हो गया, है ना। दूसरी बात यह हो जाएगी कि ये पूरी सिस्टम, ये यहूदी सिस्टम पे बेस्ड है और यहूदी मुसलमान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे इसको आम हथियार, जैसे आपने कहा पढ़ते हैं, सही बात है। इसलिए उसको आप निकालिए। अब इसको आप पता कैसे करेंगे, आज इंटरनेट बैंकिंग मौजूद है, फैसिलिटी मौजूद है, आप अपना इंटरनेट बैंकिंग करवाइए बैंक से और आप डेली चेक करते रहिए, महीनावारी चेक करते रहिए, उसमें आता है। जैसे आपने कहीं से मान ली कलकत्ता से एटीएम से निकाला होगा तो लिख देता है इतना कैश विड्रॉल फ्रॉम दिस एटीएम, पासबुक में लिख देता है पासबुक में। और आज इंटरनेट की सहूलियत, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इतना, उतना आप निकाल लीजिए, आपके पास से वो निकाल के दे दीजिए किसी को बगैर सवाब की नियत से, ये आप कर सकते हैं। एक आदमी ने कहा था नोट को जला देना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। ये आदमी थोड़ा जहालत की बिना किए गए देता है। एक आदमी ने कह दिया था एक तकरीर में, हम उनके साथ थे, उन्होंने कहा भैया कि नोट को जला दो, ये सरकार के कानून के खिलाफ आप नोट जलेगा, पकड़े जा सकते हैं, ये पकड़े जा सकते हैं, अब ये गलत चीज है। तो नोट जलाना नहीं या नोट दफन वफन नहीं करना भाई, ठीक है। आप किसी गरीब को जो वाकई मुस्तहिक है बगैर सवाब की नियत से उसको दे, लेकिन अपने पर्सनल इस्तेमाल में उसको तो जैसे ये मतलब कोई सर्विस टैक्स काट लेता है, जैसे बैंक में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, अदर बैंकिंग से ट्रांजैक्शन 25 रुपये 50 रुपये पर ट्रांजैक्शन काट लेता है, क्या हम उसको इंटरेस्ट में एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं, कि मतलब वो हमसे सर्विस चार्ज कर रहा है। सर्विस चार्ज इसलिए कर रहा है क्योंकि आप उस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर
आप किसी कैमरामैन को बुलाते हैं किसी प्रोग्राम में, ठीक है, वो अपना पूरा सेटअप लेकर जाता है, वो आया, आप उसका चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने उसको उजरत दी, ठीक है, क्योंकि आपकी मजबूरी है वो, तो आप उसके सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आपको उजरत देते सर्विस टैक्स, वो तो आपको देना ही देना है, वो तो अच्छा है कि हम सर्विस जो भी अपना काम दे रहे उसको महीने उसको हम पैसा देते हैं, उसको हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि आपने दूसरा नंबर सवाल बताया कि आपने माल कहाँ से कमाया और फिर चौथा है कि कहाँ खर्च किया। तो जैसे है कि अब आपने आगे ये भी बताया कि मकान बनाने के लिए हम बैंक से लोन लेते हैं। अगर कोई शख्स ऐसा है जिसने बैंक से लोन लेकर के अपना मकान बनाया और हमें इन है कि उसने पैसा जो मकान बनाया बैंक के लोन का पैसा से बनाया, तो फिर हमें उस शख्स के घर में आना जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, खाना पीना चाहिए कि नहीं? जा सकते हैं, अल्लाह के नबी सब यहूदियों के यहाँ जाते थे, खराब होने का डर भी है। नहीं उसमें कोई बात है, अल्लाह के नबी खुद यहूदियों के जाते थे जो सूदी का काम करते थे, सूदी कारोबार करते थे, आप जाते थे वहाँ खाना नहीं खाते, ठीक है, लेकिन देखिए वो मुसलमान है, तो आप चाहिए उनको तलकीन करिए साथ साथ कि भाई देखिए ये काम हराम है, ये काम हराम है, और थोड़ा हिकमत से समझाइए, देखिए आइंदा से करिएगा तो हो सकता है हम यहाँ नहीं है, आप समझाते रहिए, लेकिन उनके आप जा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। अगर ना माने तो आप दारोगा बना कर भी नहीं फजब के लिए न मानता मुझे हम परहेज करेंगे तो बस खत्म, परहेज करिए, आप दारोगा बना के आपका काम है सिर्फ बात पहुंचा देना, बात उसी पहुंचा देना, बस आप वहीं तक के ये तो आप जा सकते हैं, कोई इसको उतना खराब नहीं है, लेकिन उनको समझाइए भाई ये चीज़ हराम है, देखिए आप कंटिन्यू रखिएगा तो फिर आइंदा से मैं नहीं आऊँ, हिम्मत से थोड़ा समझाते हैं। कई लोग होते हैं, एक हमारे साथी थे बॉम्बे में रिजर्व बैंक में वो काम करते थे, काफी ऊंचे पोस्ट पर, मैनेजर वगैरह पोस्ट पर, रिटायरमेंट को 1 साल बाकी है, अल्हम्दुलिल्लाह जब उनको बात समझ में आई छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया, 1 साल बाकी रिटायरमेंट, तो पीएफ की जितना कटा हुआ कितना मिलने वाला होगा सोचिए आप। उनके सीनियर ने कहा कि काम करिए कि आप 2 महीने 3 महीने छुट्टी वुट्टी ले लीजिए, हम सैंक्शन कर देंगे, 2-3 दिन बीच में आ जाएगा, नहीं 2-3 महीना बाद, ताकि आपका जो पैसा मिल जाएगा। कहा कि नहीं, छोड़ दिया मैंने, छोड़ दी, ये चीज होता है, छोड़ दिया, बता समझाना उसको 1 साल पहले समझ में आया, इसलिए आप समझाते रहिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुआ करिए कि अल्लाह ताला के लिए, देखिए दावत के उसूल में ये है कि जिसको आप तबलीग करें उसके लिए दुआ भी करें, अल्लाह नबी करते थे ना, रात में क्या करते थे, रोते थे, कुरान की आयत उतर गई कि क्या आपने आपको भला कर देंगे, बाकी नफ्स ताला सारे मिल नबी तो भी हाजिर हदीस में सब कह नहीं समझ आपने आप हलाक कर देगा कि नहीं ईमान नहीं ला रहे, उनके लिए आप दुआ भी कर देंगे साथ साथ। तोड़िए नहीं कभी, रिश्ता तोड़ दीजिएगा तो फिर आप बात पहुंचाइएगा कैसे, आप डायरेक्ट के फतवा साथ दीजिएगा ना तो बात ही खत्म हो गया, ये फतवा वाला भाई है। अच्छा हमारे हम के अंदर जी जो मस्जिदें हैं, जैसे मुक़ल्लिद इमाम के पीछे नमाज होगी हमारी की नहीं, पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? शेख नासिर अलबानी रहमुल्लाह, मैं उनका आपको फतवा बता रहा हूँ। शेख अलबानी कहते हैं कि अगर आपके मोहल्ले में 5 मस्जिदें, आप 5 मस्जिदें अहले तौहीद मस्जिद नहीं है, तो क्या आप जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे नहीं? तो अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आप उस मस्जिद में नमाज पढ़िए जो इमाम सबसे कम बिदत करता हुआ, बिदत तो करते ही लोग, अगर वो कोई इमाम है उसका बिदत अगर शिर्क करता है खुला तो उसके पीछे तो नमाज नहीं, जो शिर्क करता है उसके पीछे नमाज नहीं, लेकिन जो बिदत कर रहा है और उसकी बिदत उसको बिदत कुफरिया तक नहीं ले जा रही है, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह करते उसके पीछे आप पढ़ सकते हैं ड्यू टू मजबूरी, ये मजबूरी है आपको जवाब पकड़ना है। लेकिन अगर वो इमाम शिर्क करता है, ताबीज़ वगैरह बैठता है और उसको आपने समझाया बताया भी है फिर भी नहीं मानता, उसके पीछे तो नमाज नहीं होगी। रही बात की मुक़ल्लिद इमाम वगैरह के पीछे, तो उनका इमाम अगर उनका अगर अकीदा शिर्क की तरफ शिरकिया नहीं है या वैसा बिदत जो बिदत कुफरिया नहीं है, हम कैसे जान सकते हैं? पता करिए, हम अननोन जगह पर गए तो आप मत पढ़िए। अगर आप अननोन जगह गए, हम आपके मोहल्ले की बात बता रहे हैं, उन्होंने कहा अगर आप मोहल्ले में रहते हैं, अब मिसाल के तौर पर कोई अननोन जगह गए, ठीक है, तो हम बोले तो सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि मस्जिद में खबर है कि नहीं, नंबर 1, अगर खबर है तो वहाँ नहीं पढ़ना, और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मत पढ़िए, आप घर पे पढ़ लीजिए, इसमें कोई कबर अगर मस्जिद में कबर है तो वहाँ नमाज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अल्लाह के नबी सब की हदीस है सही मुस्लिम की कि मस्जिदों को कबर के ऊपर मस्जिदों को ना बनाओ, ठीक है, तो वो चीज़ जायज़ ही नहीं है, वहाँ पर सजदा करना जायज़ ही नहीं,
तो नहीं पढ़ तो सकते। क्या हम इस नियत से नहीं पढ़ सकते हैं? हम रब्बाना सीनियर आद आमीन जिहाद करते हम वो जो गलत तरीके से नमाज हो रही है हम अकेले तनहा जाके अल्लाह की बात करके हम सही तरीके को हम पढ़ के दिखाएं? कौन ये जो शिरक कर रहा है? नहीं, एक इमाम ही नहीं ना है, पूरे मुक्तदी भरे हुए हैं। तो उस मुक्तदी को की नजर पड़ेगी ना, मैं सारे जो इस तरफ पढ़ते हैं, एक आदमी इस तरफ ढंग से पढ़ा है, क्यों पढ़ रहा है? देखिए अव्वलन तो मैंने आपको बोला ना, अगर वो इमाम शिरक कर रहा है, इमाम अगर काफी शिरक किया है, मुक्तदी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसके पीछे आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। उसमें आप ये हम हिम्मत नहीं करेंगे कि भाई हम पढ़ेंगे, लोग देखेंगे, सवाल करेंगे, ये हिम्मत आपको मारना नहीं कर सकते। नंबर एक। दूसरी बात ये कि अगर कोई इमाम जो थोड़ा बहुत बिदअत करता है, उसके में आप जाके पढ़ लीजिए। अगर आपको ये तहकीक न करना होगा उससे, इससे ये शिरक करता है हमारे। हाँ वही तो कह रहे हैं आपको तहकीक करना है, आप पता लगाइए और बहुत आसान है पता लगाना। आप पहले पूछिएगा आपको पता चलेगा, सब लोग जानते हैं इमाम साहब कैसे होते हैं। एक इमाम फिरकाबंदी के नाम पर किसी शख्स की तकलीद में मुब्तला है और रसूल को छोड़कर तकलीद की बुनियाद पर वो नमाज पढ़ता है, तो वो तो मुशरिक हुआ। ये आप किसी उलमा से इसका फतवा ले लीजिए, किसी बड़े आलिम से आप पूछ लीजिए। तकलीद शिर्क हुआ अगर, तो फिर नमाज नहीं होगी। देखिए अगर वो ये मामला तकलीद शिर्क है कि नहीं है, एक तरीके से शिर्क है तकलीद, ठीक है। लेकिन हम फिर आपको बोलेंगे आप किसी बड़े उलमा से इस मसले पर डिस्कस करिए कि भाई ये सिफात है किसी इमाम की, हम इसके पीछे क्या करें, वो आपको बेहतर रहनुमाई करें। नासिर अल्बानी या अकरम बिन बाज इस बारे में कुछ लिखती है, नासिर अल्बानी रहमतुल्लाह की या अब्दुल्ला बिन बाज की कोई किताब में ऐसी तहरीर मिलती है कि वो शिर्क नहीं करते हैं या वो तकलीफ करते हैं? मैंने आपको बताया तो अल्लामा अलबानी की किताब है, उसमें उन्होंने ये बात कहा है, इमाम की तारीफ से मस्जिद आपके मोहल्ले में भी। लेकिन अब ये बात हुई कि भाई वो तकलीफ करता है, तकलीफ भी तो शिर्क है और ऐसा है तो उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे, तो आप किसी बड़े आलिम से इसके लिए आप इस्तेमाल करिए, वो आपको सही तरीके से रहनुमाई करेंगे। मैं इस पर नहीं पूछ सकता। अल्लामा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो दूसरे इमाम है, उनसे एक मरतबा 40 सवाल किया गया, 40 सवाल। तो अपने आखिरी अय्याम में जब उनकी मौत होने वाली थी तो बहुत रोते थे। तो उनके शागिर्द ने पूछा कि इमाम साहब आप इतना रोते क्यों हैं? भाई आप मस्जिद नबी में दर्स देने वाले, जिंदगी भर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की खिदमत करने वाले आप क्यों रोते हैं? इमाम साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि एक मरतबा मुझसे 36 सवाल किए, 40 सवाल किए गए थे, 40 सवाल, मैंने 36 का जवाब सही दिया। अच्छा, तो शागिर्द ने क्या जवाब सही दिया? कहा मैंने 36 का जवाब दिया, लादरी मुझे नहीं पता, 4 का जवाब दे दिया है। डर लगता है कयामत के दिन अगर गलत निकल गया तो अल्लाह ताला पूछेगा तूने क्यों दिया था बलवा, ठीक है। तो 36 का जवाब कहते लादरी मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आदमी को ये समझना चाहिए कि हर बात हर आदमी के जवाब नहीं दे सकता। इसलिए क्या होता है कई चीजों पे आप क्योंकि देखिए बहुत सारी बारीकियां हैं, बहुत बारीकियां हैं इसमें। अल्लामा इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह से एक मतलब सऊदी अरब में कमेटी बैठी जानते की चीज के लिए कि वहां पर जो शैतान को पत्थर मारते हैं ना, तो पहले क्या होता था बहुत लोग जख्मी रहते थे। तो गवर्नमेंट ने कहा क्यों ना ऐसा हो कि हम फ्लोर्स बना दें, लोग बढ़ जाएंगे, आराम हो जाएगी। तो भाई तो गवर्नमेंट ने कहा तो दीनी मसला है ना, तो सारे उलमा बैठे। अल्लामा इब्न बाज रहमतुल्लाह जो उस टाइम ग्रैंड मुफ्ती थे, उस वक्त बता रहा हूं मौजू यही है क्या फ्लोर्स बनाए जा सकते हैं या नहीं। सारे के सारे उलमा ने कहा कि नहीं, कोई दलील नहीं। लेकिन अल्लामा इब्न बाज की फुक़हा को देखिए रहमतुल्लाह अलैह, कहा दलील है। क्या दलील है भाई? दलील ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पे बैठे हुए थे, ऊंट पे बैठे ही बैठे शैतान को कंकड़ी मारा, आप चाहते तो ऊंट से उतर सकते थे। कहा ये दलील है कि जमीन से ऊंचे सतह पे रह करके शैतान को कंकड़ी मारा जा सकता है, लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह फ्लोर्स बनेंगे। सारे के सारे उलमा मुत्तफिक हुए अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लामा इब्न बाज की फुक़हा, क्या वहाँ छोटे छोटे उलमा मौजूद थे, बड़े बड़े उलमा मौजूद, लेकिन बात नहीं समझ में। अल्लामा इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह के दिमाग में ये बात अल्लाह ने डाल दी, अगर अल्हम्दुलिल्लाह फ्लोर्स बन गए। ये फुक़हा थे, अरे इसमें क्या होता है बहुत सारी बारीकियां है, बहुत बारीकियां। बाहर भी हम लोग हड़बड़ाहट में नहीं ऐसा नहीं वैसे नहीं, वैसे नहीं बोल सकते आप, ऐसा नहीं वैसे नहीं, ऐसा नहीं। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उलमाए सहाबा में बहुत बड़े सहाबा, अल्लाह के नबी सब कहते हैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनको उलमा सहाबा का नंबर 1 टैग देगा, खिताब देगा। किसको? मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु शाम गए, वहां देखा कि लोग अपने सरदार को सजदा करते हैं, आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करते हैं, अल्लाहु अकबर, सजदा कर दिया। मुआज़ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अल्लाह रसूल में गया था खुला जगह, मैंने देखा सरदार को लोग सजदा करते हैं। उलमाए सहाबा की फहरिस्त में नंबर 1 उलमा, क़यामत दिन अल्लाह ताला उनको ये टैग देगा, वाह इतने बड़े आलिम, अब नबी से को सजदा कर दिया। मुशरिक नहीं कहा, समझाया आपको कि भाई ये ऐसा नहीं है। अगर कोई सजदा का हकदार होता तो अल्लाह के बाद तो अल्लाह ताला बीवी को कहता कि शौहर को सजदा कर, आपने समझाया। तो कई अब कितने बड़े आदमी, इतने बड़े साहबी, इतने बड़े उलमा में साहबी, लेकिन सजदा कर दिया अल्लाह के नबी। तो बहुत बारीकियां बहुत सारी चीजों में होती है, इसलिए इंसान को बहुत समझ के चलना चाहिए, बहुत समझ। एक सवाल आपने बताया कि आदम इस्लाम नबी के बारे में बताया, क्या अल्लाह ताला ने भी ये फरमाया कि आदम इस्लाम नबी थे या बंदे थे, या नूह इस्लाम पहले नबी, ऐसा भी हुआ? नूह इस्लाम पहले रसूल ये आपको मिल जाएगा हदीस में, अल्लाह और आदम इस्लाम पहले नबी नबी और रसूल में फ़र्क क्या हो जाता है कि रसूल पे शरीयत आती है, नई शरीयत, नबी पे आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। जैसे हारून अलैहिस्सलाम नबी थे, मूसा अलैहिस्सलाम रसूल थे। मूसा अलैहिस्सलाम पे शरीयत आई, तौरात आई, और उसी शरीयत को हारून अलैहिस्सलाम मदद कर रहे हैं, लेकिन वो भी नबी थे। तो नबी पे वही आ भी सकती है, नई शरीयत आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो शरीयत चल रही, उसी को बढ़ाने के लिए नबी को कहा जा सकता है। तो आदम अलैहिस्सलाम जनरली और यही कहते हैं कि वो पहले नबी थे अल्लाह के, और रसूल पहले थे नूह अलैहिस्सलाम। वही आती है रसूल, दोनों पे वही आती है, लेकिन नबी पे कंपलसरी नहीं है कि नई शरीयत आई। हाँ, क्योंकि वही का एक तरीका होता है, ये नहीं कि सिर्फ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने करके आए। वही का एक तरीका है कि नबी को ख्वाब आ गया, वो वही है। नबी का ख्वाब क्या होता है, वही होता है। मेरा का ख्वाब वही, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई नबी ख्वाब देख ले तो वही होता है। तो अल्लाह ताला उनको जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए पैगाम ना पहुंचा करके दिल में भी बात डाल सकता है, या किसी और तरीके से उनको बात अल्लाह ताला पहुंचा सकता है। लेकिन जो रसूल होता है उस पर एक नई शरीयत आती है। इंडिया में आदम इस्लाम का नाम आता है। हाँ, और कोई सवाल है? दुआ कर लीजिए।